back to my channel, The Literary Lounge. So today I have brought for you a critical appreciation or a critical analysis of the lengthiest chapter of your book Vistas, that is The Enemy, which has been penned down by Pearl S. Buck. Now, in this video, I'm going to deal with the plot, the themes, and the introduction about the author and the backdrop of this story. So Pearl S. Buck was born in West Virginia to a Presbyterian, missionary family, and they took her to a place in China called Xinjiang, right? And she was only 3 months old when she was shifted to China, and throughout her childhood, she was forced to, oscillate, transfer between, move between the Chinese world outside and the Christian and American world of her home life. And Pearl S. Buck and her family also physically moved between China and the States, the United States of America, several times throughout her childhood. And this mobility, this movement was largely, due to necessity. It was not due to fun or, leisure. The family's first return to America came in the wake of the violent anti-imperialist Boxer Rebellion in China, which targeted foreigners. And I mean, the father was an American, that is why, especially Christian missionaries, much like Buck and her family. Okay, so Buck's transcultural upbringing turned out to be, both a help and also a hindrance in her life and in her career, as it allowed her to develop a unique literary style that blends Chinese storytelling with American literary conventions. But it also led critics to consider her neither authentically Chinese nor wholly American. Now, the same attitude was, true of her childhood peers in China. Buck was marginalized and, pitied for her blue eyes and yellow hair, like most Americans have. They have blonde hair, right, and blue eyes. And while in America, she was considered a freak who could speak Chinese and wore traditional garments spun from, Chinese grass linen. So she was like a pariah whenever, whether she was in China or was in America, right? In 1938, Buck received the Nobel Prize for Literature, and she was the first American woman and only the third American writer whatsoever so far to receive the honor in the 37 years that the prize had existed. Okay, receiving this honor didn't, earn her much acclaim. Now, the reason she didn't get much acclaim was that the American, scene, this in that era when she started writing, the American literary scene was very dismissive of American women as serious, influential writers. Why? Sorry. Why? Because, female writers tended towards sentimentality, right? To, a lot of emotions, which was not considered a respected writing style in American, literary circles. That is why. It is a generalization, but still it prevailed in those, days. And after marrying John Lossing Buck in 1917, she gave birth to her sole biological child, and the child was severely disabled. It was a girl child, right? A daughter, and she was severely crippled. Over time, the couple adopted 7 children. John Lossing and Pearl S. Buck, they adopted 7 children. And the family fluctuated between China, Japan, and the States, United States. Now, throughout the course of her marriage, Buck felt increasingly stifled, choked, right, as a wife, as the role of the wife, right, and became estranged from her husband, right. They started living separately, eventually filing for divorce. So finally उनका divorce हो गया. She also became fundamentally opposed to the Christian missionary work going on in China. क्या लगता था Pearl S. Buck को? She felt deeming it, she deemed it a type of Western ethnocentrism and spiritual imperialism. उन्हें लगता था कि ये भी एक तरीके से स्पिरिचुअल imperialism है अमेरिका का, जो वो थोप रहा है चाइनीज लोगों पे, चाइनीज पीपल पे. And Buck went on to, later in her life, she went on to marry her publisher, Richard Walsh. तो जो पब्लिशर थे, जो बक की, Pearl S. Buck की बुक्स छापते थे, उन्हीं से फाइनली उन्होंने शादी कर ली. Now, we will, in very short, part, we will discuss the historical context of The Enemy. Now, the author, Pearl S. Buck, she lived through the Boxer Rebellion, like I told earlier, which took place in year 1900, when, a group of staunchly anti-imperialist peasants. अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म होता है आप जब किसी कंट्री को कंकर कर लें, ओटेक कर लें, उन पे अपने लॉस थोपें, जैसे इंडिया को ब्रिटेन की इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था. तो यहाँ भी कुछ एक बहुत ही स्टॉन्च कट्टर ग्रुप था, एंड दे वर एंटी इम्पेरियलिस्ट, राइट, एंड दे ब्रूटली किल्ड 230 फॉरेनर्स, मोस्टली क्रिश्चियन मिशनरीज. उन्हें मार दिया गया, फॉरेनर मिशनरीज को, एंड सेवरल थाउजेंड चाइनीज क्रिश्चियंस.
Now, Buck was 8 years old at that time, and along with the family, they escaped to Shanghai, right? And then returned briefly to the United States. This experience of being rejected, hated, and at risk of being killed because of a race, religion, and nationality, it deeply impacted the young writer, Perles Buck. That experience resonates, it echoes throughout her literary works, including The Enemy, this chapter, okay? And is seen most clearly by the way she stresses the universality of humankind. According to her, being human is a feeling which is universal. Okay, there is no barrier of culture, of religion, of caste, of color, of creed. Right? Being human and humanity is a universal phenomenon, according to her, which is somehow she thinks muddled by nationalism and racial prejudice. The Enemy was published a year after the attack on Pearl Harbor in 1941, when Japanese forces launched a surprise aerial attack on a US naval base in Hawaii, जिसमें करीब करीब 3,500 फौजी मारे गए थे अमेरिका के, और उनके जितने भी जो एयरक्राफ्ट करियर्स थे जिसमें जो वहाँ पे स्टेशन थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे. आई मीन फॉर अ टाइम जापान थॉट दैट दे हैड ultimately for good crippled the American fleet navy, but that did not happen because after a few days America bombed Hiroshima and Nagasaki, which is a blot in the history of mankind, right? जिसमें आज तक लोग उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलते हैं. This event catalyzed America's entry into the World War II, which is when The Enemy is set. The backdrop is the Pearl Harbor and the aftermath when America bombed Hiroshima and Nagasaki. This is the backdrop of the story. Now, the story has certain main characters. The protagonist of the story is Dr. Sadao Hoki, who is a surgeon by profession, and his wife Hannah. And then there are certain other characters, right? Like the general and the servants at Sadao's house, the cook, the gardener, and the housemaid, right? Whose name is Yumi. Okay. So while gazing out one day, at his secluded property on the coast of Japan, Dr. Sadao Hoki notices a very strange shape crawling out from the ocean. Okay, realizing it's a man, Sadao and his wife Hannah, they rush out to the beach to help. भाग के जाते हैं, अरे कौन आदमी है जो इस वक्त रात के इस पहर पे यहाँ किनारे पे आ गया है? He must be injured. They are shocked to realize that the man who is covered with blood and is now unconscious, जो बेहोश हो चुका है अब, is white and looks no older than 17. वो जो आदमी था वो आदमी नहीं, एक्चुअली वो लड़का था, 17-18 साल का लग रहा था. And they were shocked to see him. Okay, from the gunshot wound in the boy's back, उसकी एक gunshot wound है कमर पे, in his back, the ominous red scars on his neck. Okay, and the US Navy had, they deduced that he is a prisoner of war who has recently escaped from the Japanese authorities. तो उसके सर पे US Navy का हैट था, और उसका पूरा डिमीनर देख के उनको अंदाज़ा हो गया कि ये अमेरिकन नेवी या आर्मी का बंदा है और जापानीज अथॉरिटीज से भागा है, तभी इसके चोट वोट भी लगी है. ही मस्ट हैव बीन शॉट. Sadao, a famously skilled surgeon, can't help but put the man's wounds with sea moss. तो वो जो काई एल्गी जम जाती है वो उठा के उसका जो वुंड जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, सदाओ वो एलजी लेके, इट एक्चुअली वर्क्स एज स्टैंच, उससे स्टैंच करने के लिए, उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए सदाओ ने वो एलजी लेके उसके जख्म में ठूंस दी, लगा दी, ताकि ब्लीडिंग ना हो, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड, दिस बॉय वुड हैव डाइड even while proclaiming his hatred for Americans. So when he was stanching his bleeding, at the same time he was also proclaiming his hatred for the Americans. तो ये डुअल स्टैंडर्ड है अभी सदाओ का, कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुझे अमेरिकन से नफरत है, बट ही कैनॉट हेल्प हिमसेल्फ इन सेविंग द मैन्स लाइफ. उसे जान बचानी है उसकी, बिकॉज ही इज अ सर्जन, राइट? हिज फर्स्ट ड्यूटी इज टू सेव लाइफ. सदाओ एंड हैना कांट बियर टू टर्न द मैन ओवर टू द अथॉरिटीज. अब वो दोनों, उनकी हिम्मत नहीं हो रही, ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि वो अथॉरिटीज को इसे उठा के दे दें, एज दे विल श्योरली किल हिम, बट दे कांट लीव हिम स्ट्रैंडेड आउट एट सी आइदर. लेकिन वो उसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकते. They know that bringing the man into their house is illegal and dangerous. अब अगर वो किसी जापानीज को अपने घर में लाके रखते हैं, it is illegal. It is going against the country. It would be considered treason. TRESON, देशद्रोह का केस लग जाएगा उन पे. Why? Because America and Japan are at war. They are warring countries. That is why. An act that could deem them traitors, देशद्रोही, अगर उन्होंने किया तो उन पे ब्रांडिंग हो जाएगी किसकी? देशद्रोह की, और वो देशद्रोही जिम्मेदार कर दिए जाएंगे, करार दे दिए जाएंगे, एंड लीड टू देयर ओन अरेस्ट, और अरेस्ट भी हो जाएंगे. आफ्टर मच डेलिब्रेशन
द कपल डिसाइड्स टू ब्रिंग द वुंडेड अमेरिकन इनटू देयर होम डिस्पाइट द रिस्क। बहुत सारा डिलिब्रेशन करने के बाद, सोचने के बाद, आफ्टर गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट, दे डिसाइड दैट दे विल फाइनली ब्रिंग हिम होम, और वो उसे उठा के अपने घर ले आते हैं। आफ्टर प्रॉपरली एग्जामिनिंग द मैन, सदाव डिसाइड्स दैट ही इज श्योरली गोइंग टू डाई अनलेस ही अंडरगोज सर्जरी इमीडिएटली। उसकी हालत देखने के बाद सदाव को इतना अंदाजा तो हो गया कि अगर इस पर सर्जरी नहीं करी गई, इफ अ प्रोसीजर इज नॉट डन अपॉन हिम बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली वुंडेड, ही विल डाई फॉर श्योर, वो मर जाएगा। सदाव क्विकली लूजेस हिमसेल्फ इन द ऑपरेशन, और वो पूरे अरेंजमेंट करने लगता है ऑपरेशन के, टॉकिंग टू हिज पेशेंट एंड कॉलिंग हिम माई फ्रेंड। एंड थ्रू आउट द ऑपरेशन, I mean, the patient is unconscious. This boy, he is unconscious. But Sadao, when he is doing the surgery, he is constantly calling him his friend. This is his habit. वो उसकी आदत है. वो जब भी किसी का ऑपरेशन करता है तो मेरे दोस्त, my friend, he used to say. As Sadao removes the bullet lodged in the boy's side. Okay? The surgery is messy and Hannah is forced to act as the husband's assistant. अब ऑब्वियसली वो इतना वुंडेड है, तो जो सर्जरी है इट इज़ वेरी मेसी, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, and there is no one to help Sadao, so Hannah, his wife, is actually becoming an assistant right now. When she politely excuses herself to throw up, उसे ये देख के वो इतनी सारी bleeding, I mean she feels like puking, उसे उल्टी सी आने लगती है, वो बाहर जाके वो उल्टी करती भी है. Her husband is cold and unsympathetic for forgetting that she has never witnessed an operation before. अब डॉक्टर्स के लिए कहा जाता है डॉक्टर्स क्रूअल होते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं है. I mean, अगर वो भी इतने इमोशनल हो जाएंगे, दे विल नेवर बी एबल टू कट ओपन योर बॉडी, वो आपकी बॉडी को काट पीट के उसमें ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे. सो दे हैव टू बी हार्ड हार्टेड. आई मीन दिस इज द डिमांड ऑफ देयर प्रोफेशन. तो जब हैना को उल्टी आती है तो ही इज एक्टिंग वेरी इन अ वेरी कोल्ड मैनर एंड अनसिंपैथेटिक. वो ठीक है, उल्टी हो रही, कोई बात नहीं है. ये भूल गया सदाव कि दिस वॉज हैनाज फर्स्ट टाइम. उसने कभी भी किसी इंसान की बॉडी अपने सामने ऐसे कटती पिटती नहीं देखी है. दिस इज द रीजन. द सर्जरी इज अ सक्सेस. And over the course of several days, the boy, right, this boy, the wounded boy, American boy, who introduces himself as Tom, improves dramatically. सर्जरी हो जाती है और कुछ दिन में वो लड़का जिसका नाम टॉम है वो ठीक भी होने लगता है. He is warm and grateful, showering the surgeon and his wife with praise for saving his life. अब वो बहुत ज़्यादा इनका शुक्रगुजार है. ही इज़ वेरी थैंकफुल कि आपने मेरी जान बचाई वरना मैं मर जाता है, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. सदाव एंड हैना ऑलवेज रिस्पॉन्ड कोल्डली. लेकिन सदाव और हैना ने कभी भी उससे कोई रिलेशन नहीं बनाया, कोई बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता. क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि उसे दे विल हैंड हिम ओवर टू दी अथॉरिटीज़, वो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर देंगे बाद में, इम्प्लाइंग दैट दे आर स्टिल गोइंग टू टर्न हिम ओवर टू दी अथॉरिटीज़. अगर वो रिश्ता बना लेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा उसे पुलिस के हवाले करने में. Now the servants at the house, they are shocked at Sadao and Hannah's decision to, help a white man, this white boy. Their old master, Sadao's father, would have never done such a thing. अब नौकरों में क्या बात हो रही है कि सदाओ के फादर थे, वो कभी ऐसा नहीं करते. वो बहुत ही मतलब रैशनल आदमी थे और वो ही वॉज अ प्योर जापानीज. तो ये एक सवाल आ रहा है हैना और सदाओ की देशभक्ति पे कि उन्होंने एक अमेरिकन, एक दुश्मन देश के आदमी को अपने रख लिया, उसकी जान भी बचा ली, राइट. आफ्टर अ वीक ऑल ऑफ द सर्वेंट्स क्विट. Even though two of them, the cook and the gardener, have been an instrumental part of the household since Sadao was just a little boy. एक हफ्ते बाद सारे जो सर्वेंट्स हैं, नौकर है घर के, वो प्लान करते हैं घर छोड़ने का कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे इस घर में क्योंकि यहाँ पे एक अमेरिकन है, राइट. उसमें से दो नौकर, गार्डनर और कुक, वो तो जब सदाओ बच्चा था तब से इस घर में काम कर रहे थे, वेरी ओल्ड सर्वेंट्स, राइट. एंड दे डिसाइडेड टू लीव. सदाओ पेज अ विजिट टू वन ऑफ हिज मोस्ट पावरफुल पेशेंट्स. अब सदाओ को बुलावा आता है. ठीक, कहाँ से आता है? द जनरल, द आर्मी जनरल ऑफ जापान, हु स्ट्रगल्स विद अ क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम. अब वो जनरल बीमार है जिसका इलाज सिर्फ सदाओ ही कर पाता है. दैट वाई सदाओ वॉज समन्ड. सदाओ को बुलाया जाता है टू द जनरल्स पैलेस, राइट. द जनरल इज फियर्सली लॉयल टू सदाओ. अब जनरल जो है वो बहुत लॉयल है सदाओ को, क्योंकि सदाओ ही उसकी जान बचा सकता है, इसलिए. आई मीन इट्स अ गिव एंड टेक, टू वे ट्रैफिक. यहाँ भी सेल्फिश मोटिव है, सदाओ ही जान बचाएगा, इसलिए सदाओ से बहुत लॉयल है. बिलीविंग हिम टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन जापान, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड द मेन शेयर, सदाओ कन्फाइड्स इन हिम अबाउट टॉम. अब क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जनरल में सदाओ में, सदाओ हिम्मत करके उसे बता देता है जनरल को, किसके बारे में? टॉम के बारे में. ही टेल्स हिम एवरीथिंग अबाउट टॉम, हाउ ही वॉज वॉश्ड अशोर आउटसाइड हिज हाउस, हाउ ही ब्रॉट हिम इन, हाउ ही ऑपरेटेड अपॉन हिम, और वो ही टेल्स हिम एवरीथिंग, सब बता देता है, राइट. लाइक सदाओ एंड हैना, द जनरल ऑल्सो अटेंडेड कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब सदाओ और हैना की जो पढ़ाई हुई थी वो यूएस में हुई थी, अमेरिका में हुई थी. जनरल की भी वहीं हुई, राइट. सो ही अंडरस्टैंड सदाओज इम्पल्स टू हेल्प द अमेरिकन इवन दो ही इज एन एनिमी. तो जनरल को लगता है, सॉरी, कि क्योंकि सदाओ की पढ़ाई वहाँ हुई है, वो खुद भी पढ़ा है, तो एक अंदर से एक इम्पल्स है
कि नहीं वो अमेरिका में रहा है, अमेरिकन लोगों से टच में रहा है, इसलिए शायद उसने जान बचा ली है। बट दिस इज नॉट द केस। सदाओ सिर्फ इसलिए बचाता है क्योंकि वो किसी को भी बचा लेगा। वाई? बिकॉज ही इज अ गुड डॉक्टर, ही इज अ गुड सर्जन। एक डॉक्टर का धर्म क्या होता है? लोगों की जान बचाना, उनको हील करना। इसलिए सदाओ ने बचाया, राइट? द जनरल इज मोस्टली कंसर्न दैट सदाओ विल बी सेंटेंस टू डेथ एंड दस बी अनेबल टू ऑपरेट ऑन द जनरल इन द फ्यूचर। अब जनरल अपने सेल्फिश मोटिव देख रहा है कि अगर सदाओ को फांसी हो जाती है, अगर पता चल जाता है, इसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अल्टीमेटली ही इज हैंग टू डेथ, तो जनरल को ऑपरेशन कौन करेगा? जनरल को देखेगा कौन? सो सदाओ मस्ट नॉट बी हार्म्ड। सदाओ को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। द जनरल कम्स अप विद अ प्लान। वो बताता है कि मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है। ही विल सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स। असैसिन कौन होते हैं? सुपारी किलर सुना होगा आपने, कॉन्टैक्ट किलर मूवीज में देखते हैं आप। तो उसके अपने खुद के प्राइवेट असैसिन थे। वो सदाओ से कहता है मैं उन्हें भेज दूंगा टू सदाओज हाउस सम टाइम इन द नेक्स्ट वीक। सदाओ इज टू लीव द डोर टू टॉम्स रूम अनलॉक्ड। बस सदाओ को यह करना है कि टॉम के कमरे का जो डोर है, जो गार्डन की तरफ खुलता है, उसे ओपन छोड़ देना है, और कुछ वो सब खुद हैंडल कर लेंगे असैसिन्स, राइट? In the middle of the night, the assassins will silently kill the white man and dispose of the body, lifting the burden from Sadao's shoulders. वो रात को उसे मार देंगे और उसे उठा के भी ले जाएंगे, बॉडी भी डिस्पोज कर देंगे, and everything will be normal, everything will be good. Now, several days pass, and you know these assassins, they never turn up, they never show up. जैसा वादा किया था जनरल के assassins आएंगे, मार देंगे, बॉडी भी डिस्पोज कर देंगे, तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता. And Sadao is actually tired of waiting. Right, and he sends Tom to a nearby island in the middle of the night. वो एक प्लान करता है और टॉम को एक आइलैंड है पास में, उसके घर के पास, किनारे से थोड़ा दूर, वहां उसे भेज देता है. वेयर ही इज बाउंड टू बी पिक्ड अप बाय अ कोरियन फिशिंग बोट. क्यों भेज देता है? वहां अक्सर कोरियन फिशिंग बोट उस आइलैंड के पास से गुजरती हैं, जिसमें बैठ के टॉम वहां से भाग सकता है. ही टेल्स टॉम टू फ्लैश हिज टॉर्च और फ्लैश लाइट एट डस्क इफ ही रन्स आउट ऑफ फूड बिफोर बीइंग पिक्ड अप. वो कुछ सिग्नल बताता है उसको, टॉम को, कि तुम्हें एक बार टॉर्च जलानी है और 2 बार जलानी है, ताकि तुम्हारे पास खाना खत्म हो गया है, कोई और प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन सी द सिग्नल. ओके, नाउ अ फ्यू डेज लेटर सदाओ टेल्स द जनरल दैट टॉम हैड एस्केप्ड. अब कुछ दिन बाद जाता है सदाओ जनरल के पास, बताता है अरे साहब वो तो भाग गया, वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो भाग गया मेरे यहाँ से. द जनरल गिल्टली रियलाइजेज दैट ही फॉरगॉट टू सेंड द असैसिन इन द फर्स्ट प्लेस. अब जनरल को गिल्ट होता है कि अरे वो तो मैंने वादा किया था, आई डिडंट फुलफिल माई प्रॉमिस. मैंने कहा था असैसिन भेजूंगा, मैं भूल गया. He had been so wrapped up in his own fragile health that he forgot to help Sadao. Fragile means कमजोर, नाजुक. अब जनरल को अपनी इतनी पड़ी थी अपनी सेहत की, अपनी हेल्थ की, कि वो he totally forgot about that. वो भूल ही गया कि उसे assassins, contact killers भेजने हैं टॉम को मारने के लिए. The general hastily makes sure that Sadao doesn't think him any less patriotic or dutiful for forgetting to have the white man killed. अब वो फौरन अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है. कौन? जनरल. कि देखो सदाओ, मैं ऐसा नहीं है, मैं देशभक्त नहीं हूँ, आई लव माई कंट्री, बस वो मेरी सेहत ऐसी हो रही थी, मैं इसलिए भूल गया, मैं भी बहुत बड़ा देशभक्त हूँ. अब सदाओ को एकदम से रियलाइजेशन होता है कि इस गलती की वजह से जनरल जो है वो सदाओ की मुट्ठी में आ गया है, इस गलती की वजह से. तो अब सदाओ को कोई नुकसान वैसे भी नहीं होगा. ही इज सेफ एंड हिज फैमिली इज सेफ. ओके, द टू मैन बोथ प्रॉमिस टू कीप क्वाइट अबाउट द होल सिचुएशन. दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि इसके बारे में अब कभी कोई नहीं बताएगा. इट विल ऑलवेज बी केप्ट अंडर रैप्स. ये जो बात है ये ढकी छुपी रहेगी हमेशा, टॉम वाली. थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल इन सदाउस हाउस होल्ड एंड इवन द सर्वेंट्स कम बैक. अब टॉम तो चला गया, तो सर्वेंट्स भी दोबारा वापस आ गए और चीजें नॉर्मलाइज हो गई सदाओ की लाइफ में, हाउस होल्ड में. एट डस्क सदाओ लुक्स आउट ओवर द सी. तो जब बिल्कुल शाम, दिल ढलने को होता है, सदाओ समुद्र की तरफ देखता है, सेम जगह पे खड़े होके जिस दिन ये टॉम बह के आ गया था, उसी जगह पे खड़े होके. देयर आर नो फ्लैशेस फ्रॉम अ फ्लैश लाइट. और वो आइलैंड की तरफ देखता है, वहां से कोई फ्लैश लाइट, कोई सिग्नल नहीं था. सदाओ नोज टॉम हैज फ्लेड टू सेफ्टी. और इससे सदाओ को पता चलता है कि टॉम वहां से भाग गया है. ही हैज फ्लेड टू सेफ्टी. फ्लेड मतलब भागना, यानी वो सेफ है, वो जा चुका है वहां से. सदाओ थिंक्स बिटरली अबाउट ऑल द अदर वाइट फेसेस ही हैज नोन इन हिज लाइफ टाइम एंड वंडर्स व्हाई ही कुडंट किल टॉम. अब सदाओ के दिमाग में सारे वाइट फेसेस, जब वो अमेरिका में था, सारे अमेरिकन के चेहरे याद आते हैं. एंड ही इज वेरी बिटर. कड़वाहट भरी हुई है उसके अंदर. ही डज नॉट लाइक अमेरिकन एंड he wonders why he couldn't kill Tom. And then he's starts questioning himself. वो अपने आप से सवाल करता है कि मैं क्यों इस अमेरिकन को नहीं मार पाया. I could have easily killed him, or I could have left him to die there. किनारे पे छोड़ देता, मर जाता खुद ही. इतनी ब्लीडिंग होती, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग से he would have died. But Sadao saved him and he is questioning himself. Why? This question is for you. Why? Because Sadao is a good man.
innately he is a very good man, he is a good, human being, and because he is a doctor, his first duty is to save lives. Now there are, three themes, mainly decisions and duty, humanization, right, humanity, kindness and antagonism, and racism and nationalism present in this chapter, right. So this story, it is set in Japan during World War II. A severely injured American prisoner of war, whose name is Tom, he washes up outside, on the beach outside Tom, this doctor Sadao Hoki's house, the secluded home of this surgeon, right, and his wife Hannah. So for the bulk of the story, Sadao struggles to reconcile his duty as a surgeon, which goes directly against the grain of his duty as a loyal Japanese citizen, right? His first duty was to hand him over to the police because he is a Japanese citizen. He has to be a patriot, but he instead saves his life. His occupation as, as a surgeon didn't allow him to, hand him over to the police, और वो उसकी जान बचा लेता है और उसे वहाँ से भगाने में मदद भी करता है, right? And then throughout the course of the enemy, this story, Dr. Sadao struggles to come to terms with his conflicting impulses to see Tom, an American prisoner of war who was washed up on the beach alongside Sadao's house, as an inhuman enemy and as a fellow man. तो कोशिश बहुत करी उसने कि मैं इसे अपने एनिमी की तरह देखूं, something which has been, something which has been made by, popular media as inhuman, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया. जब भी हमें अपने दुश्मन को दिखाना होता है तो हम उसको सारे इनह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं कि ये बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है. उसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब भी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन सदाओ नहीं कर पाया ऐसा क्योंकि उसके सामने वो आदमी था. ही ओनली कंसिडर्ड हिम एज अ यंग बॉय हु वॉज ह्यूमन जस्ट लाइक हिम. द स्टोरी सेट इन जापान, राइट, in the thick of World War II, making it understandable that Sadao, a loyal Japanese citizen, would perceive Tom as an enemy. But that did not consummate, that did not happen, right? And the enemy, it follows Dr. Sadao Hoki and his wife Hannah as they struggle to decide what to do with an American prisoner of war who has washed up on the beach alongside their house, right? The prisoner was a white teenager, Tom, who is badly injured due to a fresh gunshot wound. अभी थोड़े दिन पहले या थोड़े घंटे पहले ही उसके गोली लगी है, राइट. इट वॉज अ फ्रेश गनशॉट वुंड, एविडेंस ऑफ हिज रीसेंट एंड नैरो एस्केप फ्रॉम जापानीज अथॉरिटीज. तो ये एविडेंस है कि वो अभी जापानीज अथॉरिटीज से भाग के आया है. एंड सदाओ फील्स कंपेल्ड एज अ डॉक्टर टू सेव हिज लाइफ. तो यहाँ पे जो है वो एक जंग है रेसिज्म और नेशनलिज्म के बीच में कि सदाओ को इसे बचाना है या नहीं बचाना. सो आई होप टुडेज क्रिटिकल एनालिसिस वॉज हेल्पफुल. और इसके बावजूद आपको कोई कमेंट्स, कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, यू कैन ऑलवेज यूज द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड वन मोर थिंग, अगेन दिस टुडेज वीडियो वाज मेड इन अ जिफी. I have some other duties to tend to, so there might be some errors. I mean, I did it in a very, quick tone. So I'll upload one more video if you didn't find this one satisfying. Till then, you have a good day. Bye bye.